Hi guys, welcome to Sketch School of Art and Creativity. So in today's video, we are going to discuss in detail the syllabus of the JEE Paper 2, or you can say the JEE Arc examination. Now, what happens is a lot of the students start preparing for any entrance examination without knowing the exact syllabus for the same. So definitely the first step is to understand each and everything regarding the syllabus of the examination. जब तक तुम्हें पता ही नहीं होगा examination में आने क्या वाला है, you can never prepare fully for the examination. क्या होगा? Either you will end up preparing something extra या फिर कुछ रह ही जाएगा. So that is why it is very important to understand all the different things that are there in the syllabus. So all the students who are going to appear in the first attempt of the JEE exam or even in the second attempt, this will be a very important video for you. So do make notes of each and everything and make sure that before doing the exam you cover most part of the syllabus and you prepare according to the syllabus that is actually there in the examination. Alright, so let's start discussing about the syllabus that is there. So the JEE Arc examination is of 400 marks. So 400 marks का examination होता है, out of which it is divided into 3 sections, or you can say 3 subjects. You have drawing, you have aptitude, and you have mathematics. So you have 200 marks for aptitude, you have 100 marks for drawing and 100 marks for mathematics. So as aptitude is having the maximum weightage, सबसे ज़्यादा marks aptitude के ही हैं. So let's talk about the aptitude portion first. Now the first topic in the aptitude section is 2D 3D visualization. Why I am talking about this topic first? क्योंकि सबसे ज़्यादा weightage out of this 200 marks इसी particular topic की है. So as the name suggests, it will this tests your visualization power. So architecture में visualize करना चीज़ों को is very important because whenever you design a building, you're designing it on the basis of your visualization. That is why this particular topic is tested in good amount in the examination. इस topic के अंदर भी कुछ सब topics हैं that you need to prepare जिसके questions examination में आते हैं. So I'll tell you about those topics. The first one is top views and front views. इसमें क्या होता है? You are given either the 3D figures or something. चलो एक example से समझते हैं. Suppose I give you a cube and I ask you what will be the top view of that. So that is simply a square. Similarly, if I give you a cube again and I ask you what will be the front view of this, again that will be a square. So definitely examination में इतने simple questions नहीं आते, but इसी को complicate करके, इसी को complex level पे करके they give you questions. So again you will be given some 3D figures, उसका correct top view या front view बताना होगा, और maybe you might be given a top view, उसका front बताना होगा या front view, उसका top बताना होगा. So basically इसको interchange करके vice versa करके questions are there. The second topic that is a part of 2D 3D is surface counting. What is there in this questions? Again you will be given, okay let's take an example. Again अगर हम cube का example लें तो I ask you cube में कितने surfaces होते हैं. So all of you can simply answer 6. तो similarly examination में cube की जगह थोड़े से complicated 3D figures दे देते हैं in which थोड़ा सा extra time तुम्हें लगेगा, थोड़ा और ज़्यादा visualize करना पड़ेगा, and based on that you can simply choose the correct option जिसमें correct surfaces हैं. The third type is unfolding 3D figures. Again let's come back to our cube. So अगर cube को unfold करें या फिर अगर मैं तुम्हें एक sheet of paper दूं and you draw 6 squares in that in a particular manner और तुम उसे scissors से cut कर दो, you can form a cube by folding the sheet in a particular manner. ठीक है, so definitely you can choose. तो अगर मैं 4 options दूं और मैं पूछूं कि after unfolding the cube which one of the following is correct, कौन सा सही है, तो you all can answer. तो simply वो उस cube को थोड़ा complicate करके, थोड़ा complex करके और figures देते हैं, you just have to choose and visualize कि इसको open up करने के बाद कौन सा सही बन रहा है. Then comes the question that will test your observation skills. So इसके भी 3-4 topics हैं जो तुम्हारे observation skills test करेंगे examination में. The first one is mirror images. Mirror images में भी there are 2 type of questions. Either तुम्हें एक 3D figure दिया होगा, उसका तुम्हें mirror image बताना होगा, या फिर तुम्हें एक 2D figure दिया होगा, उसका mirror image बताना होगा. The next one is odd one out. Odd one out में क्या होता है? तुम्हारे पास 4 options होंगे, चारों similar होंगे, almost similar, but उसमें तुम्हें बहुत अच्छे से observe करना और ये पता लगाना है which out of the 4 is different from the rest. Based on the number of lines that are there or the number of angles that are there, any basis पे वो हो सकता है question, but again उसे अच्छे से observe करके अच्छे से practice अगर तुमने करी है इस question की, तो you'll be simply able to answer it in the examination. The next is hidden figures. Hidden figures में क्या होता है? You will again be given a figure, एक 2D figure दी होगी, उसमें they'll ask 4 options में से कि कौन सी figure उस main question figure का part है. ठीक है, सो अगेन उसे अच्छे से ऑब्जर्व करना है, सारे ऑप्शंस को क्वेश्चन फिगर से मैच करना है, एंड देन आफ्टर सम प्रैक्टिस एंड आफ्टर इफ यू हैव डेवलप्ड द गुड ऑब्जर्वेशन स्किल्स, देन यू कैन आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. So right now in this video I am just telling you about the syllabus कि क्या क्या एग्जामिनेशन में आता है, बट अगेन इन टॉपिक्स को प्रैक्टिस कैसे करना है, इसकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या एग्जैक्ट रोड मैप है, कितना दिन में कितना प्रैक्टिस करें, कहाँ से प्रैक्टिस करें, कैसे करें, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर. सो दैट कम्स इन द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बेसिकली. सो इफ यू गाइज वांट आई कैन डेफिनेटली मेक अनदर वीडियो विच विल बी फोकसिंग ऑन द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर द एग्जामिनेशन, कि जो 1 मंथ का टाइम बचा है एग्जामिनेशन में, उसमें तुम कैसे एग्जामिनेशन में हाई मार्क्स ला सकते हो, कितना
टाइम किस टॉपिक को दें, कैसे अपना टाइम डिवाइड करें एंड एवरीथिंग। अभी तक जो हम क्वेश्चंस की बात कर रहे थे, यू नो दे वर ऑल विजुअलाइजेशन बेस्ड या तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड। तो ये तो एग्जामिनेशन का एक पार्ट हो गया। ये जो अभी तक हमने टॉपिक्स की बात करी, 100 मार्क्स का इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आने वाले हैं फॉर श्योर। दैट इज द पैटर्न बीइंग फॉलोड थ्रू आउट। काफी सालों से यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब हम बात करें जो एप्टीट्यूड के 100 मार्क्स बचे हैं, उसमें आते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सारा ऑब्जर्वेशन विजुअलाइजेशन था। अब हम बात करेंगे सारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स, थ्योरेटिकल टॉपिक्स की, जो 100 मार्क्स का आने वाला है। द फर्स्ट टॉपिक इन दिस इज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल्स। सो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल्स इज समथिंग विच इज वेरी वेरी वास्ट, बट डेफिनेटली एग्जामिनेशन में कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जिन पे क्वेश्चंस आते हैं। हम हर टॉपिक का डिटेल नहीं अभी डिस्कस कर पाएंगे, वीडियो 2-3 घंटे की हो जाएगी। दैट इज वाई आई एम जस्ट टेलिंग यू द मेन टॉपिक्स। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में भी क्या क्या टॉपिक हैं वो डेफिनेटली व्हेन सपोज द स्टूडेंट्स हु आर इन आवर कोर्स, सो जो हम टॉपिक्स हमें पता है कि यही टॉपिक्स आने वाले हैं, तो डेफिनेटली हम वही प्रिपेयर करवाते हैं, क्योंकि इट इज वेरी वेरी वास्ट। सब कुछ तुम कर ही नहीं सकते। कुछ तो कॉलेज के लिए भी छोड़ना है, राइट? जब कॉलेज 5 साल के कॉलेज में कुछ तो सीखोगे। तो दैट इज वाई जो बेसिक चीजें हैं जो एग्जामिनेशन में रेगुलरली पूछी जाती हैं, दैट इज व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन। सो वन इज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल्स। इस पे तुम्हारे जनरल क्वेश्चंस आते हैं जो आर्किटेक्चर एस्पिरेंट्स को पता होना चाहिए। अगर हम कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, दे टेस्ट थिंग्स लाइक क्वेश्चंस कैन बी बेस्ड ऑन ब्रिक्स की, डिफरेंट ब्रिक्स को क्या कहते हैं, डिफरेंट ब्रिक के बॉन्ड्स को क्या कहते हैं, कंक्रीट पे क्वेश्चन आ सकते हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर्स। तो जो बेसिक कंस्ट्रक्शनल नॉलेज है वो तुम्हारी टेस्ट करेगा एग्जामिनेशन, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर। So history of architecture is again a very very vast topic and unfortunately इसमें तुम ऊपर से नहीं पढ़ सकते। इसको कहीं ना कहीं थोड़ा डिटेल में पढ़ना ही पड़ता है, because the type of questions that come in the examination are not that easy। थोड़ा सा डिटेल में some questions are always there। So why it is very vast? Because history of architecture में एक तो वर्ल्ड आर्किटेक्चर है कि वर्ल्ड आर्किटेक्चर वर्ल्ड स्टेज पे कैसे आर्किटेक्चर एरा से इवॉल्व होता आ रहा है, एंड दिस इंडियन आर्किटेक्चर अलग से कि इंडियन आर्किटेक्चर भी टेम्पल आर्किटेक्चर हो गया, रॉक कट आर्किटेक्चर हो गया, केव में सारे आर्किटेक्चर हो गया, वो कैसे ग्रेजुअली ओवर द ईयर्स इवॉल्व हो रहे हैं। तो दैट इज वाई इट इज अ वेरी वास्ट सिलेबस, वास्ट टॉपिक, बट इसमें क्वेश्चंस भी काफी आते हैं। ठीक है, तो दैट इज वाई यू कैन नॉट स्किप दिस टॉपिक, दो इट विल टेक सम एक्स्ट्रा टाइम, बट यू नीड टू डिवोट दैट टाइम टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। नेक्स्ट एंड अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज फेमस आर्किटेक्ट्स एंड फेमस बिल्डिंग्स। नाउ फेमस बिल्डिंग्स का मतलब केवल यही नहीं है जो फेमस रीसेंट बिल्डिंग्स बनी है अभी, इसमें फेमस मॉन्यूमेंट्स भी आते हैं, एंड इस पे ट्रस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन, स्पेशली मैच द फॉलोइंग फॉर्मेट में काफी ज्यादा JBR के एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। सो सारे फेमस आर्किटेक्ट्स के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, उनके नाम पता होना चाहिए, उनकी बिल्डिंग्स पता होनी चाहिए। फेमस बिल्डिंग्स जो पूरे इंडिया में है, पूरे वर्ल्ड में, वो भी पता होनी चाहिए। प्लस जो ओल्ड मॉन्यूमेंट्स हैं, अगेन वर्ल्ड में भी इंडिया में भी, उनकी भी डिटेल्स इन द सेंस लोकेशन पता होना चाहिए, उसका अगर कोई आर्किटेक्ट है फेमस बिल्डिंग का वो पता होना चाहिए, प्लस उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता होनी चाहिए। सो बिल्डिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी कि किस मॉन्यूमेंट में जाली है, किस मॉन्यूमेंट में मार्बल वर्क है, वो सारी चीजें भी तुम्हें नॉलेज होना चाहिए। इस लेवल पे भी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कलर थ्योरी। सो कलर थ्योरी पे भी ऑलवेज 2, 3, 4 क्वेश्चन हर जेई के अटेम्प्ट में आते ही आते हैं। इसके अंदर अगर थोड़ा सा हम एग्जाम्पल लें तो कलर स्कीम बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सी कलर स्कीम है या फिर कहाँ पे कौन सी कलर स्कीम यूज होती है, थोड़ा प्राइमरी कलर्स कौन से हैं, सेकेंडरी कलर्स कौन से हैं, थोड़ी कलर थ्योरी, बेसिकली कुछ टर्म्स होती हैं लाइक टिंट्स, शेड्स, ह्यूज, तो इनका मीनिंग क्या है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो बेसिकली सब कलर थ्योरी का ही पार्ट है। इवन साइकोलॉजी की डिफरेंट कलर्स की क्या साइकोलॉजी है, लोगोज में भी किसी रीजन से कलर यूज होते हैं ड्यू टू सम साइकोलॉजी, ड्यू टू सम पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस। सो इट इज नॉट अ वेरी वेरी वास्ट टॉपिक, हिस्ट्री की तरह, कंस्ट्रक्शन की तरह बहुत वास्ट नहीं है। तो इस कलर थ्योरी टॉपिक को तुम अगर अच्छे से करके जाते हो, तुम 2 दिन में, 1 दिन में भी एक्चुअली पूरा टॉपिक आराम से कर सकते हो एंड अपने वो 2-3 क्वेश्चन सिक्योर कर सकते हो। The next topic is architectural terms or architectural theory. So there are some very important terms which are used by the architects और जो भी फील्ड में होते हैं like civil engineers and real estate वाली फील्ड, जो भी architecture से related fields हैं, उसमें काफी commonly कुछ terms use होती हैं। तो definitely उस पर भी कुछ questions are always there in the examination. नेक्स्ट वी हैव आर्किटेक्चरल अवेयरनेस। आर्किटेक्चरल अवेयरनेस का क्या मतलब है, थोड़े एग्जाम्पल से ही समझते हैं। देयर आर सम अवार्ड्स, मे बी वर्ल्ड लेवल पे भी, इंडिया के लेवल पे भी, जो किसी आर्किटेक्ट ने रिसेंटली जीता है। सिमिलरली देयर आर सम अथॉरिटीज, सम बॉडीज इन आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट या आर्किटेक्चर में होती हैं, तो उनके क्या फुल फॉर्म्स हैं या वो किस लिए वर्क करती हैं, ग्रीन आर्किटेक्चर क्या होता है। सो बेसिकली जो आर्किटेक्चरल अवेयरनेस है जो तुम खुद गेन कर सकते हो थ्रू रीडिंग, थ्रू मे बी फॉलोइंग द करेक्ट इंस्टाग्राम पेजेस एंड थोड़ा रिसर्च करके, एंड जो भी इंटरेस्टेड है उस चीज में, जो भी आर्किटेक्चर फील्ड के बारे में पढ़ता रहता है, that person can easily answer those questions. Also, do follow SSAC Institute on Instagram because we do keep posting a lot of architectural awareness things, a lot of things on general knowledge, current affairs. तो जो कुछ चीजें होती हैं जो तुम जितना grasp करो, जितना पढ़ते रहो उनके बारे में, that always help you. So do follow the Instagram page to learn such things. एक और टॉपिक है जिस पे recently थोड़े questions, मतलब 2-3 साल से I have personally observed questions आते हैं, that is famous artists
एंड फेमस पेंटिंग्स। तो फेमस आर्टिस्ट पेंटिंग्स तुम कैसे रिलेट कर सकते हो? स्टूडेंट्स हु हैड टेकन आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, कल्चर वाले टॉपिक्स इन द 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, तो तुम्हारा एग्जामिनेशन जो थ्योरी एग्जाम होता है फाइन आर्ट्स का, उसमें यू हैव फेमस आर्टिस्ट एंड फेमस पेंटिंग्स पे क्वेश्चन आते हैं। सिमिलरली जो इंडिया की फेमस पेंटिंग्स है, वर्ल्ड लेवल पे भी जो फेमस पेंटिंग्स हैं, फेमस आर्किटेक्ट्स हैं, एक दो क्वेश्चन उनके बेस्ड पे कि मे बी ऑन द आर्टिस्ट की इस पेंटिंग का आर्टिस्ट कौन है, या फिर ये पेंटिंग दे दी या फिर आर्टिस्ट दे दिया उसकी पेंटिंग कौन सी है, ऐसे क्वेश्चंस भी डू कम। लास्ट टॉपिक जो एक्चुअली ऑलमोस्ट हर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आता है, दैट इज जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स इज अगेन समथिंग जो तुम जितना पढ़ते हो रोज, जितना करते हो उतना तुम्हारे पास नॉलेज होती है। सो जनरल नॉलेज में तो एनीथिंग कैन कम, यू नो, सपोज कि ये वाटरफॉल कहाँ पे है, या फिर लंदन को और क्या कहा जाता है, ठीक है, या फिर जैसे जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, तो पिंक सिटी कौन सी है। सो एनी जनरल थिंग कैन कम। करंट अफेयर्स में ऑल्सो तुम्हें पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, आसपास क्या हो रहा है, जैसे फीफा हो रहा था अभी, तो वो करंट अफेयर्स के भी थोड़ा तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि दुनिया में चल क्या रहा है। गाइस, सो दैट वाज ऑल अबाउट द एप्टीट्यूड पार्ट। सो एप्टीट्यूड के बारे में आई थिंक यू हैव सम आइडिया, सम क्लैरिटी कि तुम्हें क्या क्या प्रिपेयर करना है, क्या क्या आने वाला है। ऑल्सो गाइस, इफ यू वांट सम मोर गाइडेंस एंड यू वांट टू नो मोर अबाउट द एग्जामिनेशंस, देन SSC Institute is conducting free demo classes, free live classes for all the students, in which you will get to know a lot of things about the NAT and the JBR examination. Plus you will be getting free study material, free mock tests and a lot more. So to attend the demo classes you can simply WhatsApp us on the number which is given in the description. अब हमारा पार्ट आता है ड्राइंग का एंड मैथमेटिक्स का। ओके, सबसे पहले बात करते हैं अपने ड्राइंग के सेक्शन की। ड्राइंग के सेक्शन का मैं तुम्हें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, तुम्हें सिंपली बताऊंगा तुम्हें क्या क्या करके जाना है एंड वो करके जा रहे हो, उसके बाहर कुछ भी एग्जामिनेशन में नहीं आने वाला है। सिमिलरली जो मैंने एप्टीट्यूड का बताया वो भी अगर तुम सब कुछ करके जा रहे हो, सो आई एम श्योर कुछ भी इससे बाहर नहीं आएगा। यू विल श्योरली बी एबल टू, अगर अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है डेफिनेटली, सो विल श्योरली बी एबल टू स्कोर गुड इन द एग्जामिनेशन। ओके, सो लेट्स कम बैक टू अवर ड्राइंग पार्ट। सो ड्राइंग पार्ट में तुम्हें 4 टॉपिक्स हैं, देयर आर 4 टॉपिक्स दैट यू नीड टू डू, ठीक है। द फर्स्ट वन इज पोर्ट्रेट्स। पोर्ट्रेट्स क्या होता है? शक्ल बनाना। जैसे यू नो, यू ड्रॉ माई फेस, यू ड्रॉ योर फेस, या किसी और का फेस बना रहे हो, या थोड़ा सा फेस से नीचे वाला पार्ट भी बना रहे हो। सो पोर्ट्रेट्स इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू। इसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है जिसमें तुम्हें क्वेश्चन दिया है कि इमेजिनेशन से अपना सेल्फ पोर्ट्रेट बनाओ, या अपनी सिस्टर का बनाओ, या अपने अंकल का बनाओ, या अपने फादर का बनाओ। कभी कभार कैसे आता है, पोर्ट्रेट तुम्हें एग्जामिनेशन में एक फोटो ही दे देते हैं, जैसे ओल्ड लेडी की फोटो कोई दे दी, उसको ही रेप्लिकेट करके तुम्हें सेम पोर्ट्रेट बनाना है। तो एक टाइप तो हो गया हमारा पोर्ट्रेट के क्वेश्चंस। सेकंड आता है हमारा पर्सपेक्टिव स्केचेस। तो पर्सपेक्टिव स्केचेस क्या होते हैं? पर्सपेक्टिव टेक्निक से यूज करके जो स्केचेस बनते हैं, इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं? सीन्स के क्वेश्चन। जैसे लास्ट ईयर आया था होली सीन का क्वेश्चन, लास्ट ईयर आया था स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन। तो हमें अपनी इमेजिनेशन से स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाना है, या कोई होली का सीन बनाना है, या कोई और फेस्टिवल का सीन बनाना है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तुम आउटिंग पे गए हो, मॉल में गए हो, मेले में गए हो, कहीं भी गए हो, जिसको तुम्हें इमेजिनेशन से व्यू ड्रॉ करना है। सो डेफिनेटली उसके लिए तुम्हें पर्सपेक्टिव स्केचिंग की नॉलेज होनी चाहिए। पर्सपेक्टिव स्केचिंग के साथ ऑल्सो तुम्हारी स्केचिंग अच्छी होनी चाहिए। स्केचिंग इन द सेंस शेडिंग आनी चाहिए, कलरिंग आनी चाहिए, ह्यूमन फिगर्स बनाने आने चाहिए, एनिमल्स में भी एनिमल्स भी आ सकते हैं, एनिमल्स बनाने आने चाहिए। सो ओवरऑल सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन तुम्हें अगर आता है अच्छे से, यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन वेरी वेल। जो हमारे 2 टाइप के क्वेश्चंस रह गए, उसमें से एक है 2D कॉम्पोजिशन एंड द सेकंड वन इज 3D कॉम्पोजिशन। एज द नेम सजेस्ट, 2D कॉम्पोजिशन में क्वेश्चंस आते हैं जिसमें तुम्हें 2D शेप्स है, लाइक स्क्वायर्स, ट्राइंगल्स, सर्कल्स, पेंटागन्स, हेक्सागन्स, इन्हें कंबाइन करके मे बी दे विल गिव यू अ कलर स्कीम, या तुम्हारा कलर का चॉइस भी हो सकता है। वैसे करके तुम्हें एक 2D कॉम्पोजिशन क्रिएट करना होता है। 3D कॉम्पोजिशन में बस चेंज हो गया क्या, स्क्वायर्स और ट्राइंगल्स की जगह हमारा क्यूब्स, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर्स, ये सब आ जाएगा। अगेन तुम्हें उनको कंबाइन करके जो भी दे रखा है क्वेश्चन में कि ये यूज करना है, उनको साथ में ड्रॉ करना है, एक विजुअली अपीलिंग वे में उसको क्रिएट करना है, उसमें शैडोज दिखानी है, अच्छे से शेडिंग करनी है। दोनों क्वेश्चंस में 2D में भी 3D में भी कॉम्पोजिशंस में द मेन थिंग इज एस्थेटिकली अपीलिंग होना चाहिए तुम्हारा डिजाइन। तो डिजाइन शुड लुक गुड। अब डिजाइन अच्छा दिखाने के दो मेन तरीके होते हैं, 2 मेन चीजें पर तुम्हें फोकस करना होता है। द फर्स्ट वन इज तुम प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन और कुछ अच्छी चीजें यूज करके उस डिजाइन को क्रिएट कर रहे हो, कंपोज कर रहे हो। तो जो कंपोजिशन कैसा है, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। द सेकंड थिंग इज अब तुम्हारी स्केचिंग स्किल्स कैसी है, स्केचिंग स्किल्स इन द सेंस तुम्हारी कलरिंग कैसी है, तुम्हारी शेडिंग कैसी है, वो भी इक्वल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो या अगर ड्राइंग में तुम ये 4 टाइप के क्वेश्चंस डेली अच्छे से प्रैक्टिस करके जा रहे हो, ये करके जा रहे हो, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, दैट आई कैन अश्योर यू। अच्छा हाँ, ड्राइंग में एक बात हमारी रहेगी, व्हाट इज दैट, कि ये 4 टाइप के तो मैंने बताया, फिर क्वेश्चंस 2 ही आते हैं। 2 क्वेश्चंस आएंगे 50 मार्क्स के, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक्स करके जाने हैं, बट आएंगे 2 ही। ओके, द लास्ट इज द मैथमेटिक्स पार्ट। सो मैथमेटिक्स पार्ट की हम बात करें तो मैथमेटिक्स पार्ट का सिलेबस बहुत ईजी है। 11th 12th दोनों का पूरा एंटायर जो सिलेबस है मैथ्स का, जो एनसीईआरटी में तुम्हारा सीबीएसई का या किसी भी बोर्ड का है, वो पूरा का पूरा मैथ्स आता है, बट डेफिनेटली उस लेवल का नहीं, हाई लेवल का आता है, ठीक है। तो मैथ्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं? अगेन 100 मार्क्स का मैथ्स, उसमें नेगेटिव मार्किंग है। इसमें 20 क्वेश्चंस तुम्हारे एमसीक्यू हैं एंड तुम्हारे 10 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल
10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड है, यानी कि तुम्हें उसमें फिल इन द ब्लैंक्स, लाइक तुम्हें आंसर लिख के आना होता है। तो 10 में से केवल 5 ही अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। सो टोटल 25 क्वेश्चंस है, सारे 4 मार्कर के हैं, तो 100 मार्क्स हो गए एंड -1 फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। टोल्ड यू इन डिटेल रिगार्डिंग द सिलेबस एज ऑफ नाउ। तो सिलेबस का आई होप सारा ड्राइंग का भी, मैथ्स का भी, एप्टीट्यूड का भी क्लियर हो गया होगा सब लोगों को, द स्टूडेंट्स हैव वॉच्ड द एंटायर वीडियो। अब इसको प्रिपेयर कैसे करना है, कितना टाइम ड्राइंग को दें, कितना टाइम सोएं, कितना टाइम खाएं, कितना टाइम पढ़ें, एप्टीट्यूड में भी कैसे करें, मैथमेटिक्स में भी कैसे करें, दैट इज आई नो काफी लोगों को क्वेरीज होंगी कि सिलेबस तो चलो समझ आ गया, इसको प्रिपेयर करना कैसे। सो इफ यू गाइज वांट देन आई कैन डेफिनेटली मेक अ वीडियो कि एग्जैक्टली तुम्हारा क्या रोड मैप होना चाहिए डेली का फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट, फोकसिंग मेनली ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट, कि तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल प्लस ला पाओ, यानी कि बेसिकली अच्छे कॉलेज में जो मिलते हैं थ्रू JBR जा पाओ। So do let me know in the comment section if you want a video for the same, and do not forget to subscribe to the channel because काफी सारी ऐसी helpful videos will come in the future on both the examinations JBR as well as the NATA examination.